Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and here I am live in this evening session of mine. So I'll just, there's still 2 minutes and I'm just going to go on Facebook and check who is live over there. And in the meantime, if those of you who are watching, you can always tell me where you're logging in from. Are you either from within Pakistan or you are, watching from abroad? So just let me know that. So now I'm just going to go on Facebook and check. Okay. I hope everyone had a good day. Okay. So I'm live over here and I'm just going to see if there's anyone who's live at the moment. And then I can start. Okay, I hope the connection is going to stay stable because it's just showing me that it's the connection is slow. So who is this at the top of my screen? I can see a face over here, but can't make it out who that is. So just let me know whoever you are, and in the meantime, I can keep on looking at the other screen where I can see you people logging in and watching. Okay, so if you can, just go through this caption which I have written. So just let me know, what do you think about this caption? Or what do you think I plan to talk about today? Or what does this caption pertain to? Like it's just half the quote, not the fully quote. Okay, so now I can see your emojis which are coming and they're going, so I can see them. Okay, thank you so much. So yeah, and there's one emoji which is showing the sign of crying. So why is this emoji crying? So those of you who are crying, do let me know, why are you crying? What's the reason? अभी तो मैंने कुछ start ही नहीं किया तो फिर रोना क्यों आ रहा है? Yusuf Khan, thank you so much for joining this session and watching this live. Okay, yes, I can see the emojis. Okay, so any ideas? Anyone who can guess what this quote is about or what I plan to discuss today? So do let me know. Okay. अच्छा, जब जैसे कि कोई बता नहीं रहा, so I'll just break the silence and break the suspense myself. So what I plan to talk about today? Okay, dear. What I plan to talk about today is that as an individual, all of us, we need to believe in ourselves. Or the quote which I plan to discuss today, it's that believe in yourself. You're stronger than you think, more capable than you imagine, and you're destined for greatness, for great things to come in life. So this is Walaikum Assalam Jan Muhammad. So this is what I plan to talk about. So when we think about these things, Jan Muhammad, I'm fine, alhamdulillah. I hope you're fine as well. So सबसे पहले जो चीज़ आती है, like how can a person be destined for greatness? So उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है, that is, as a person you need to recognize your inner strength. So जब तक आप अपने अंदर अपनी खूबियों को झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक you won't be able to achieve what you want to do in life. So वो जो inner strength है, now that inner strength can be anything. And then again देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनमें एक चीज़ आपने खुद इस्टेब्लिश करनी होती है कि दो आपको आउटसाइड फैक्टर्स बहुत से मिल रहे होंगे, दोज पीपल हु आर गोइंग टू बी योर फ्रेंड्स या कलीग्स होंगे या टीचर्स होंगे या प्रोफेशनल्स होंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू ट्राई टू पिन पॉइंट दी स्ट्रेंथ्स इन यू और इन योर करेक्टर. बट देन एट द एंड ऑफ द डे, जब तक आप अपनी वैल्यू, अपने जो इनर स्ट्रेंथ्स है वो खुद रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक बात उस तरीके से नहीं बनेगी. सो सबसे पहले चीज़ ये है कि यू नीड टू रिकग्नाइज योर इनर स्ट्रेंथ. अब वो इनर स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है. यू कैन बी अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, यू कैन बी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. देन देर आर सो मेनी थिंग्स. आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत सारी हो सकती है. यू कैन बी अ कंपैशनेट पर्सन, यू कैन बी एन एम्पैथ, you can be a caring person, a compassionate person. So there are so many inner strengths. अब inner strengths
हर इंसान को अपनी खुद पता होती हैं. लाइक एट टाइम्स व्हेन पीपल गो टू काउंसलर्स, सो उसमें जो काउंसलर्स होते हैं, when you know if you trust the counselor, then definitely you are going to talk about things. और यह है कि if you feel comfortable with the counselor, तो यह है कि आप बताते हैं अपने बारे में जो भी आपकी चीज़ें होती हैं. But then again, you as an individual know it yourself कि okay, these are the things जो कि मेरे में हैं, these I possess these things. So this is how you recognize your inner strength. So counseling की तो खैर वो बात की चीज़ है, बाद में आती है. That is if you feel like कि भाई you need a counselor, then you go to the counselors. Otherwise, if you know your inner strength, so you can devise your strategy according to that and then move on. So this is the number one thing कि you need to recognize your strengths. अच्छा, देन उसमें जो है स्ट्रेंथ की बात, ओके, आई जस्ट टेक योर कमेंट्स साइड बाय साइड सो आई नो व्हाट आर यू सेइंग. अच्छा, अभी जो है स्टिल आई कांट स्क्रॉल इट. ओके, देन जो है इसमें एक और जो चीज़ आती है, यू नीड टू अनलीश द हिडन कैपेबिलिटीज़. अब हर एक, यानी जिस तरह स्ट्रेंथ्स होती हैं इसी तरीके से आपकी हिडन कैपेबिलिटीज़ होती हैं. और वो हिडन कैपेबिलिटीज़ आपको जो है ना, व्हेन यू आर इन द सिचुएशन, तब आप जो है ना यू कम टू रिकग्नाइज एंड रियलाइज कि ओके भाई, मेरे में तो ये कैपेबिलिटीज़ भी हैं. लाइक देर आर मेनी टाइम्स, आप देखें, दोज ऑफ यू हु आर इनटू वर्किंग इन्वायरमेंट्स या ऑफिस वगैरह में जाते हैं, या यू वर्क इन सम काइंड ऑफ जॉब, 9 to 5 जॉब करते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं या ऑफिस में करते हैं. एंड देन उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं कि भाई यू आर आपको एकदम से बॉस कह देते हैं कि भाई यू हैव टू प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन, और ये है कि क्लाइंट्स आ रहे हैं और आपने प्रेजेंट करनी होगी. नाउ दैट्स द सिचुएशन, मे बी आपने पहले कभी प्रेजेंटेशन ना दी हो क्लाइंट्स को, बट देन जब आपको उस जो है मोड में डाला जाता है, तो देन यू नो कि ओ वाओ, मेरे में तो ये कैपेबिलिटी है. क्योंकि देन हो सकता है कि जब आप जो है मे बी इन योर इनर माइंड यू माइट बी वेटिंग फॉर दैट एग्जैक्ट मोमेंट कि भाई एक दिन ऐसा आए जब जो है ना मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले, मैं जो इस तरह प्रेजेंट करूँ और ये होगा वो होगा. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो आ जाती है एक अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ क्रिएटेड. और जो आपके बॉस हैं या जो मैनेजमेंट है, सिंस दे ट्रस्ट इन योर कैपेबिलिटीज, क्योंकि दे हैव सीन योर पोटेंशियल, सो उन्होंने तो आपका पोटेंशियल देखा होता है. बट ये है कि आपको भी अपना इनर पोटेंशियल पता होना चाहिए और उस पर आप ही वर्कआउट कर सकते हैं, रादर देन के दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करें कि दे शुड ऑलवेज बी द वन सीइंग योर इनर पोटेंशियल. क्योंकि जब आप अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ या हिडन कैपेबिलिटीज़ रिकग्नाइज करते हैं, कुछ एक्सटर्नली भी की जाती हैं, और अगर आप खुद जो है उसको करने में कामयाब होते हैं, तो जो आजकल के जो मसले मसाइल हैं, जिसमें जो है पीपल डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस कि भी हमें ये कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या हम जो है वी कैन डू मच मोर देन व्हाट वी आर डूइंग. सो ये जो फियर्स होते हैं या कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. सो वंस यू रिकग्नाइज दोज कैपेबिलिटीज, दोज हिडन कैपेबिलिटीज, so you are able to pour in much more productivity than you usually are. Afzal Mahmood, thank you so much for joining this session. Okay, so this is another thing. अच्छा, फिर उसमें जो है एक और चीज़ ये होती है, और देन जो अनलिशिंग हिडन कैपेबिलिटीज़ है ना, उसमें ये होती है कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आप जो है ये सोचेंगे कि भाई लाइक इफ़ यू आर इन अ रिमोट वर्किंग सेटअप एंड यू जस्ट थिंक कि भाई बस मैं रिमोट वर्किंग करता रहूँ या करती रहूँ, और मुझे जो है ना आई डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन और गो आउट और मीट पीपल और क्लाइंट्स और डू एनी थिंग एक्स्ट्रा. सो उसमें क्या होता है कि उस तरीके से यू वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज योर कैपेबिलिटीज. लाइक बहुत से ये उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पर पीपल आर इंट्रोवर्ट्स या दे आर टू मच शाय and they can't go out of the comfort zone and go out in the open, face to face लोगों से मिले, उनके साथ कांटेक्ट करें, कॉन्फिडेंस जो है अपना जो है खुद जो है बूस्ट करें. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक हो सकता है इन योर रिमोट सेटअप यू माइट बी अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन and a very much extrovert person as well, but when it comes to facing people, then you become a very shyful person. So उसमें जो है you have to get out of your comfort zone
so you can recognize your hidden potential या आपकी जो hidden capabilities है, you need to recognize them. So this is another thing. Thank you Maruk for joining this session. Then उसमें जो है आपने एक और जो चीज़ इसमें करनी होती है, you need to set and achieve goals. और सेटिंग गोल्स अगेन वही गोल्स होते हैं, लाइक यू आर एम्बिशियस about certain goals, so you need to set those goals, but then again they have to be smart, they have to be realistic, and they have to be time measured. क्योंकि जो goals होते हैं ना, अगर वो जो है time measured नहीं होंगे या realistic नहीं होंगे, goals में again they can be short goals, they can be long term goals, and you have to make that list and you have to identify कि भाई ये कौन से गोल्स हैं जो मैंने शॉर्ट टर्म में अचीव करने हैं या कौन से गोल्स हैं जो मैंने लॉन्ग टर्म में अचीव करने हैं. लाइक इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है, एंड यू हैव डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स, अब देन वो जो फील्ड्स होंगे जिसमें आपका एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है कि आपको उससे रिलेटेड यू हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स, या यू हैव टू you do need more of practical knowledge about that particular thing. So उसके लिए आप क्या करेंगे, then you are going to chalk out a list. Like if you say कि भाई you have um, a, an ample experience regarding project management. So project management का आपके पास चलो experience है, but then you'll have to get yourself into that working mode जहाँ पर वो practically आप apply कर सकती हैं, या मज़ीद आप अगर उसको enhance करना चाहते हैं, या you want to take it to another level. So what you can do is you can join an organization जहाँ पर project management जो है practically apply की जा रही है, और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि you can enroll in a certain course जहाँ पर आप मज़ीद एडवांस लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख सकते हैं. सो ये जो चीज़ें होती हैं, दीज हेल्प यू इन सेटिंग योर गोल्स विच आर रियलिस्टिक. सो रियलिस्टिक गोल्स इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं. और देन अगर लॉन्ग टर्म में जो है आप उसको परसू करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज एनरोल इन अ इन अ लॉन्गर कोर्स. जिस तरह जो है यू कैन ऑलवेज परसू सम काइंड ऑफ डिग्री या सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स जो कि जिसकी जो है स्पैन जो है 6 months to 1 year होती है. सो जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं वो भी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प यू इन सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स. क्योंकि एक आपने सेट कर लिया गोल कि भाई आई हैव टू pursue this specific knowledge in order to gain a broader perspective regarding that particular subject, so I can apply it in my future career, your future goals. Chaudhry Imran, walaikum assalam, thank you so much for your blessings. Okay, so this is another thing regarding setting and achieving goals. अच्छा, फिर उसमें जो है एक जो चीज़ है जो इसमें अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि एज एन इंडिविजुअल यू नीड टू एम्ब्रेस चैलेंजेस. और जो चैलेंजेस है ना, यू नीड टू एम्ब्रेस देम एज अपॉर्चुनिटीज़. मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही चैलेंज आता है तो लोग जो है ना टोटली एक जो है ना उसमें क्लास्ट्रोफोबिक जो है ना एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, या एक माइंडसेट हो जाता है ओहो चैलेंज आ गया, इस चैलेंज को किस तरह किया जाएगा. अगेन वही सिनेरियो आ जाता है कि यू डू नॉट ट्रस्ट योर कैपेबिलिटी, यू डू नॉट ट्रस्ट कि भाई यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे में ये शऊर है, मेरे में ये कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि वो जो चैलेंजेस है ना उनको अपने लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना होता है. अब हो सकता है कि यू माइट नॉट लाइक, you might have just the fundamental knowledge या basic level knowledge about that particular challenge, but then अब जो दौर है it's the digital दौर, and then यानी it's not necessary कि आपको वो challenge का जो solution है किसी book में मिलेगा. You have to go and apply it in the real life scenario, in the real life working conditions. या ये है कि जब आप लोगों के साथ interact कर रहे होते हैं या उनके साथ communicate कर रहे होते हैं, यू आर एक्सचेंजिंग आइडियाज़, ग्रुप में डिस्कशन आप करें, इंडिविजुअली कर रहे हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ कर रहे हैं. और इंटरनेट तो भरा पड़ा है जो सोशल मीडिया को जो है गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, इससे आप जो है प्रोडक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक व्हेन वी डू पॉडकास्ट, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम डूइंग पॉडकास्ट विद डिफरेंट पीपल, इट्स नॉट दैट कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर फील्ड्स, बट देन आई टॉक टू देम and I get a know how okay ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, then I do my research, I do the search कि okay जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो किस किस किस्म का काम कर रहे होते हैं. But then when I do my podcast with them, which is one to one basis, either it's
it's टॉपिक स्पेसिफिक, या फिर इट्स अबाउट देयर पर्सनल जर्नीज या देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या उनकी लाइफ जर्नीज के बारे में होती है. सो देन आई कम टू नो अबाउट ओके भाई इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे होते हैं ये चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू वो गो थ्रू कर रहे होते हैं. सो दैट्स हाउ यू कम टू लर्न अबाउट पीपल एंड you come to know about them. It's not that कि भाई you are you have knowledge of every kind या आप एक पूरा encyclopedia हो, but yes you do become an encyclopedia when you're interviewing with different people and you're knowing about their real life scenarios या उनके साथ क्या हुआ क्या पेश आया, and then you get to learn a lot from those people. और एंड दिस इज़ हाउ आप जो है चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे लेते हैं, रादर देन कि आप जो है घबरा कर बैठ जाए कि भाई ओके लाइक आई रिमेंबर कि देयर हैव बीन मैनी पॉडकास्ट जहाँ पर मैनी टाइम्स लैंग्वेज वाज अ बैरियर फॉर मी, क्योंकि आई एम इन द हैबिट ऑफ कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, बट देन मोस्टली जो लोग आते हैं आई हैव टू कन्वर्स विद देम इन उर्दू, एंड देन देयर आर पीपल जिनकी जो है डायलेक्ट से टोटली चेंज होते हैं. Recently I had to interview a person who is more of he's a literature person, और उनका जो ज़्यादा focus है that is in Punjabi language, but ये का शुक्र है कि I was able to comprehend what he was saying, and though he was talking in English and Urdu as well, but then I was mentally prepared कि okay भाई पंजाबी है और हो सकता है उसमें कहीं पर प्रॉब्लम आए, बट यह कि आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड एंड देन आई न्यू कि ओके ठीक है, a person cannot know each and everything. All what you can do is you can communicate in a way, you can show certain gestures and certain actions जिससे जो है आप जो है दूसरे की ज़ुबान अंडरस्टैंड कर लें और अपनी बात दूसरे को समझा दें. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क. सो आपने जो चैलेंजेस होते हैं उससे डरना नहीं होता, रादर उसको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे लेना होता है. Then there are many times when I come here in these live sessions and there are many topics which I don't know. Like I do know about them, but it's not that कि बिल्कुल A to Z मुझे उन सबका पता हो. So what I do is I do go through them, I do consult people, I do consult my colleagues जो कि उस working environment में रहे हैं, who have been exposed with those things. So इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से यू आर इन अ बेटर पोजीशन, आप उन चैलेंजेस को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे ले रहे होते हो. सो दिस इज़ हाउ यू वर्क. ओके लेट मी सी इफ आई कैन टेक कमेंट्स ऑफ यू पीपल. ओके ओके इट वाज जस्ट रोटेटेड. ठीक है, अभी जो है कमेंट्स रुके हुए हैं. अच्छा देन जो है इसमें मज़ीद क्या चीज़ हो सकती है कि हाउ जब आप अपने अंदर बिलीव करते हैं तो देन you need to believe in other people as well. और वो believe आप किस तरीके से कर सकते हैं, you need to encourage them. और वो encourage आप जो है यानी किस तरीके से करते हैं, when people talk to you they have that faith in you, that's why they are talking to you. and maybe जिस तरीके से आप लोगों की लाइफ से इंस्पायर होते हैं या लोगों की बातचीत से इंस्पायर होते हैं, तो you are always contacting them and you are connecting with them and you are thinking कि okay भाई like they can pour in some good things into them. So you have to play that role of an encouraging person as well. अब ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है औरंगजेब माली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. सो इस तरीके से नहीं होता कि ऑल यूर डूइंग इज आप जो है मैं कर रहे हो, बट रादर आपने जो है जो लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, उनको भी इनकरेज करना है. जो अभी का टाइम है इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम. इसमें ये जो टाइम है इन दीज टाइम्स वी नीड अ लॉट ऑफ एम्पैथ्स, वी नीड अ लॉट ऑफ हीलर्स. ठीक है, वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल हु लुक बियॉन्ड देमसेल्व्स, हु गो टूवर्ड्स द लेवल ऑफ जो एक यानी बाहर जो विच इज़ वेरी ओपन. पीपल आर फोकसिंग ऑन कम्युनिटीज़. सो इन पाकिस्तान इट्स कंपैरेटिवली न्यू. Not many people are focusing on communities, but yes क्योंकि आमतौर पे हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कोई वॉलंटरी वर्क करे तो मे बी दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दी कम्युनिटीज़, या कोई अगर जो है वैसे जो है ह्यूमैनिटेरियन वर्क करे तो दे आर गोइंग टू फोकस ऑन द कम्युनिटीज़. बट नो, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल. वी नीड टू फोकस ऑन आवर कम्युनिटीज़. और उन कम्युनिटीज़ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जाकर जो है
पूरे के पूरे जो है विलेजेस को जो है उनकी जो है मदद शुरू कर दो या वॉलंटरी काम करना शुरू कर दो. यू कैन स्टार्ट विद अ सिंगल पर्सन. सोशल मीडिया पे जो लोग जो है आपके पास आते हैं, दे आर द पीपल हु आर either stuck in their life or they are facing some kind of trouble and they are coming to you. So as a human, you need to look beyond your needs and you need to focus on them कि भाई आप उनको किस जगह पे हेल्प कर सकते हो. So जिस तरीके से हम बहुत दफ़ा कहते हैं कि भाई आप ये जो काम करोगे जैसे सदका जारिया, सो ये है कि हेल्पिंग आउट पीपल इट्स ऑल्सो सदका जारिया. अब दैट कैन बी इन एनी फॉर्म. इट helping a person in monetary terms, it's not always the solution. There are people who just want you to listen to them. Then there are people who want a certain यानी हर एक के जो है ना अपने issues होते हैं. So you need to talk to them. You need to listen to what they are saying. क्योंकि listening जो है it's a skill and बहुत few हैं. There are, as I said, we need a lot of healers. So we need people who can listen to each another. तो जब आप एक दूसरे को सुनेंगे तो you will be able to encourage other people as well. But then again, इस सारे सिनेरियो में you are not going to forget who you are या what is your purpose. आप उधर क्या कर रहे हैं. You are not going to be derailed from your path. So you have to keep your mental health as well in mind, rather than कि भाई आप लोगों को एड्रेस करते करते जो है ना अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल एट स्टेक लगाते हैं. सो वो आपने काम नहीं करना. सो यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल इन एवरीथिंग. ओके, सो ये जो है दिस इज रिगार्डिंग इनकरेजमेंट. अच्छा, फिर उसमें जो है यस, एक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, लाइक अक्सर जो है आपने जो है ना फिल्म्स देखी होंगी. फिल्म्स में क्या होता है कि सीन स्टार्ट होता है और सीन में ये होता है कि there's this protagonist या हीरो या हीरोइन and they are seeing कि भाई तालियां ही तालियां बज रही हैं and they are receiving some kind of award. So वो सारा जो है ना एक सीन बना होता है. और नेक्स्ट सीन ये होता है कि भाई वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो जो है एकदम जो है उठ जाता है या उठ जाती है and they come to know कि it was a dream. So ये जो चीज़ है ना, this is basically visualization. So visualization for success. So when you visualize your success, चाहे आप ड्रीम फॉर्म में कर रही हैं या चाहे आप जो है ख्याली पुलाव फॉर्म में कर रही हैं, so you are channelizing that success which is going to come in the future inshallah. क्योंकि you are working on it, you are working on your success, you are visualizing your success. और जब आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हैं तो then you are ready to work on it and you are doing that work. दो apparently you might not be seeing कि भाई ओके मैं इसके लिए जो है काम कर रही हूँ, बट अनकॉन्शियसली इन योर माइंड आप उसके लिए जो है बहुत अरसे से वो काम करना शुरू कर देते हैं. एंड देन जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दोज आर ऑल प्रेपरेशंस. सो in that scenario you as an individual need to believe in yourself, क्योंकि when you are going to believe in yourself तो you are going to unleash your hidden capabilities. जब hidden capabilities आपकी unleash होंगी तो you are going to understand कि you are capable, you are much more capable than you think you are. और then there are बहुत दफ़ा ऐसे instances आते हैं कि जब इंसान ये सोचता है कि भाई मैं तो इस काबिल नहीं था, बट देन अल्लाह मियाँ जो है इस तरह के रास्ते बना देती है, इस तरह की जो है पाथ्स आपके टर्निंग हो जाती हैं, इस तरह के लोग आपके साथ आकर लग जाते हैं जो कि आपको अपनी मंजिल या आपकी जो भी मंजिल होती है उस तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा एड करते हैं. और दैट एड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज, या ये है कि शोइंग यू द राइट पाथ, या एट टाइम्स जो है वो आपको बहुत सी ऐसी जो है तरीके बता रहे होते हैं कि भाई ओके यू आर डूइंग दिस, आप इसको इस डायरेक्शन में करें तो you will ultimately reach your path. Now I remember I still like whenever I'm doing different things, like अभी जब मैंने YouTube पे जो है अपना ये चैनल स्टार्ट किया and I started putting videos on YouTube, तो स्टार्ट में जो है I did face a lot of difficulties और हर एक को difficulties face होती है. I won't say कि भाई it was an easy peasy thing और जो है ना बहुत आसानी से जो है चीज़ें हो जाती है. No, you have to struggle, क्योंकि basically जो है we don't know things.
सो हम जो है अपने एंड पे खुद ट्राई कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. अब उस एक्सपेरिमेंटेशन में वो लोग जो कि आपकी जर्नी को देख रहे हैं एंड दे आर कीनली ऑब्जर्विंग, सो दे आर इन दैट पोजिशन टू गाइड यू कि ओके ठीक है, ये जो है जैसा ये खातून है, ओके शी इज ट्राइंग. अली शेर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. सो दे सी ओके यू आर स्ट्रगलिंग एंड देन देर आर मेनी पीपल जो आपको बता रहे होते हैं कि ओके आप वीडियोस इस तरह डाल रही हैं, आप वीडियोस को इस तरह करके देख लें, इस तरह करके देख लें. सो यू लिसन टू ईच एंड एवरी वन एंड यू डू ट्राई टू अप्लाई देयर स्ट्रेटेजीज. एंड देन इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे जो आपका चैनल जो है ग्रो करता है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो देन बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको आपके इनफैक्ट ज़हन व गुमान में भी नहीं होता कि ओके भाई ये भी आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है, बट देन उनकी गाइडेंस भी इट ऑलवेज हेल्प यू. और फिर प्लस आप यूट्यूब खुद भी जो है वीडियो स्टडी कर रहे होती हैं, जो क्रिएटर्स हैं ऑलरेडी जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनकी इतनी सब्सक्रिप्शन है, सो यू आर स्टडिंग कंटिन्यूसली. सो ये जो challenges होते हैं, you are learning from these challenges and you are experimenting, and it's not that कि you are giving up कि भाई आप कहो कि भाई एक दो वीडियोस डाल दिए तो अब जो है चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा. you have to work on it consistently. So you have to recognize yourself, you have to believe in yourself. कोई आप पे बिलीव करे ना करे, आपको अपने आप पे बिलीव करना है, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ्स निकालनी है, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे बिलीव करना है. यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू टेक चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव टू राइज राइज फ्रॉम द एशेस जो कहते हैं ना, यू हैव टू राइज फ्रॉम दैट. सो इसी तरीके से जो है ना यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज योर ट्रू सेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट सक्सेस जिसको जो है ना आप कहते हो कि यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. एंड देन इसमें एक और जो चीज़ है, यू नीड टू लर्न फ्रॉम सेटबैक्स. अब when you are यूट्यूबिंग, डेफिनेटली आप काफ़ी सेटबैक्स फेस करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूट्यूबिंग या पॉडकास्टिंग, इट्स अबाउट एनीथिंग यू आर डूइंग. चाहे आप जो है एक 9 to 5 सिनेरियो में हो या चाहे आप रिमोट वर्किंग सिनेरियो में हो, रिमोट वर्किंग सिनेरियो में हो, तो देन यू आर गोइंग टू फेस दी सेटबैक्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म. चाहे वो अपवर्क है, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है. उसमें जो है इफ़ यू आर नॉट एबल टू असेस कि भाई जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्या चाह रहे हैं, एंड यू आर अनएबल टू डू द वर्क दे वांट फ्रॉम यू, तो देन यू आर गोइंग टू फेस सेटबैक्स. और उन सेटबैक्स से आपने डरना नहीं है, स्टिल आपने उसमें भी कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करना है और आपने लगे रहना है. क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी प्रपोजल जो आपके जो है स्किल सेट के साथ है, तो देन आपको इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लाजमी सक्सेस मिल जाएगी. बट यू हैव टू लर्न and you have to grow yourself, you have to improve your skills, and you have to see what's the requirement of the set proposal या client की क्या requirement है, and then accordingly आप उस पर apply करेंगे. अच्छा, then इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है which is also very important कि if you have this capability of believing in yourself, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू टेक बोल्ड इनिशिएटिव्स. अब वो बोल्ड इनिशिएटिव्स कुछ भी हो सकती हैं. इट कैन बी इवन अ स्मॉल थिंग एंड इट कैन बी एज बिग एज लॉन्चिंग योर ओन बिजनेस, योर ओन प्रोजेक्ट. अब जो बिजनेसेस हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में होते हैं, तो दे हैव दिस नो हाउ ऑफ कि भाई, क्योंकि पहले जो वो बिजनेसेस कर चुके होते हैं उसमें वो फेलियर देख चुके होती है. सो जितनी ज़्यादा आप जो है एक चीज़ की जो है प्रैक्टिस करते हैं, आपको उसकी नो हाउ हो जाती है. एंड इट इज़ यानी हो सकता है कि कोई अगर सक्सेसफुल बिजनेस है तो उससे पहले अगर उसने 10 बिजनेसेस किए हैं तो वो 10 के 10 फेल हो, और यह है कि जो 11वां बिजनेस है दैट्स अ सक्सेस. सो every step of the way you keep on learning. So setback से आपने डरना नहीं है, you have to be consistent and you have to do the you have to do more and you have to grasp the opportunities and the challenges. So if you are going in a business, अगर आपका माइंडसेट जो है बिजनेस वाला है, तो दो यू आर गोइंग टू स्टडी द थ्योरी, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करे. क्योंकि बाज़ जो है बहुत सी ऐसी थ्योरीज होती हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प नहीं करती, और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही हेल्प करता है. सो व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद पीपल,
जो मैं आपको कहती हूँ, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू गो एंड सिट विद द पीपल एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपने बिजनेस करना है तो यू हैव टू गो एंड सिट विद द बिजनेस टाइकून्स, क्योंकि हो सकता है बिजनेस टाइकून आपको वो इंसाइट्स ना दें जो कि आपको एक बेस लेवल पे बैठा हुआ जो है शॉपकीपर या जो सेलर है वो दे सकता है, क्योंकि उनमें जो है जो एम्पैथी है या जो कंपैशन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर सिटिंग एट दी टॉप टीयर्स पे जो बैठे होते हैं, क्योंकि जो टॉप टीयर्स पे होते हैं नो वन वांट्स टू शेयर देयर सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेड, सो दे वुड गिव यू समथिंग कि जिससे जो है आपको हो कि हाँ भी बहुत बहुत ज़्यादा बता दिया है, बट ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू गो and visit and interact with the people at the base level who are starting or who might be in that position for many years, but yeah, they have a successful business, so they are going to tell you the actual tips. So you need to go out of your comfort zone, different markets को visit करें, different लोगों के साथ बैठें, and then you'll come to know कि what does a real business require, और इसमें जो है यानी वो जो कहते हैं ना कितने व्यूओं का शो है, सो वो फिर आपको उस टाइम पे समझ आएगी व्हेन यू आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट विद द राइट काइंड ऑफ पीपल. So this is all what I wanted to share regarding believing in yourself, and when you believe in yourself you will know that you are capable, you are much more capable than you think you are, and you'll be destined for greatness and success. और ये greatness और success जो है, you don't have to look towards other people who have to tell you कि भाई you are destined for success या you have these qualities. Rather you need to believe in yourself and अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी क्वालिटीज़ और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, हर फील्ड में पॉलिश करें जिसमें आपको लगता है कि उसमें आपकी स्ट्रेंथ है. लाइक खैर आई वोंट टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आई स्टिल थिंक कि भाई देर आर मैनी एरियाज जहाँ पर है मुझे अपनी काफ़ी स्किल्स पॉलिश करने की ज़रूरत है, बट देन दैट इज़ हाउ यू लर्न एंड दैट इज़ हाउ you opt for challenges, and you convert those challenges into opportunities. So that's all what I wanted to share. Now let me see अगर आप लोगों के कोई comments है या अगर कोई questions है मेरे लिए तो do tell me. Aveswan, thank you so much for joining this session, and in the meantime I'll just scroll your comments, and let me see. Okay, is there anyone who wants to come live on the camera? I'll just go and open the Facebook and see कि आप में से. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इमोजीज एंड थम्स अप. अगर आपको जो है इफ द सेशन वाज क्लियर, सो डू शो मी योर इमोजीज जो कि अभी मैंने जो है रोल होते हुए देखी है. और अगर जो है कोई चीज़ क्लियर नहीं है, यू कैन ऑलवेज pour in your suggestions and comments in these boxes, so I'll take your questions live. और अगर किसी ने लाइव क्वेश्चन नहीं करना, यू कैन ऑलवेज गेट इनटू माय मैसेंजर इनबॉक्स एंड ओके भाई ये मुंह खुले हुए इमोजीज भी आ रही हैं. अच्छा, ये मुंह खुले हुए इमोजीज का क्या मतलब होता है कि यू आर शॉक्ड एट दिस टॉपिक या व्हाट? ओके, सो जस्ट लेट मी नो. मैसेंजर में जो है इनबॉक्स में जो है यू कैन जस्ट pour in your suggestion या कमेंट या जो भी हैं आपके, you can just leave them over there, and I am just going to address those questions when I go offline. So that's all. Okay, now let me see if anyone does anyone want to come live on camera. अगर कोई आना चाहता है तो अभी भी स्क्रीन पे आ सकता है. There was someone, I saw someone जिन्होंने ज्वाइन किया था, but then I guess वो चले ही गए. चलें, it's okay. So इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी with a new topic and new insight to share, as well as personal experiences. So let's see कल का टॉपिक किस चीज़ के हवाले से होता है, but इंशाल्लाह it's going to be an interesting one. So till tomorrow, bye bye and take care. Allah Hafiz.